sorry, 1 is lowest. As when we compare the 3, right? So Yes. that is what we had seen. But now there are going to be exceptions to this rule. Exceptions बोल रहे थे बेटा केमिस्ट्री में, ठीक है? पूरा केमिस्ट्री एक्सेप्शन है. इसको एक्सेप्शन लो, उसको एक्सेप्शन लो. That is a different rule. It follows differently. But ये जो एक्सेप्शन है इसमें लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है? Now what is the logic behind this? Let us see the examples where the exceptions lies. आ जाओ. We are discussing the first ionization enthalpies of the second period. थर्डिंग साउंड आ रहा है फिर से? Yes. थोड़ा आ रहा है, पहले के थोड़ा। मुकाबले कम आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा Yes. कम आ रहा है. Because I changed the room, that's why. ठीक है, तो अभी I cannot go out of my house ना बेटा प्लीज, तो इतना तो तुम लोग बर्दाश्त कर लेना. I cannot ask my neighbor to stop you having his house renovated. Definitely I will curse him later, but right now I have to teach you. Okay, fine. So let us discuss the first ionization enthalpies and the first, second, third, whatever it is, ionization enthalpies of the second period. Second period का हम लोग ionization enthalpies discuss करते हैं. इसमें कौन सा exception आएगा वो देखते हैं. अभी ionization enthalpy increases across the period. ये हमको पता है कि नहीं पता है बेटा? पता है. वेरी गुड. देखो, लिथियम के बाद बेरिलियम, ठीक है? लिथियम के बाद बेरिलियम का एंथैल्पी इंक्रीज हुआ, बट उसके बाद बोरॉन का एंथैल्पी कम हुआ एज कंपेयर टू बेरिलियम, जबकि इट शुड इंक्रीज, राइट? दिख रहा है ग्राफ सामने? हाँ. बोरॉन के बाद कार्बन का बढ़ा, नाइट्रोजन का भी बढ़ा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का कम हो गया एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. उसके बाद फ्लोरीन और नियोन का इंक्रीज हुआ. तो हमको दो एक्सेप्शन दिख रहा है यहाँ पे, बेरिलियम एंड बोरॉन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना बेटा? दिख रहा है सबको? Yes, sir. Very good. Abhi, what we have learned just some time back, that across the period the ionization enthalpy increases. Now this is the period I'm looking at. This is the second period I'm looking at, and in this second period I have to see, I'm seeing two exceptions: beryllium and boron, nitrogen and oxygen. Okay, can someone guess what might be the reason? Sir, in beryllium S orbital is completely filled, but in boron p orbital starts to fill. Absolutely correct. Very good, beta. If you check beryllium, in beryllium the s orbital is completely filled, 2s2. Okay, and in helium, if you check, it is 2s. Sorry, not helium. Boron. If you check, it is 2s2, 2p1, where 2p1 is the p orbital is incompletely filled. Okay, it is a one unpaired electron, and in beryllium I have two paired electrons. तो paired electrons में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. नहीं, यस, मे बी, समझा? समझा बेटा? एस में दो पेयर्ड है, पी के अंदर एक अनपेयर्ड है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इजी टू रिमूव एज कंपेयर टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ऑल्सो S is completely filled and P is incompletely filled. So a completely filled orbital is more stable as compared to incompletely filled. Right? And that is the reason why the ionization enthalpy of boron is less as compared to that of beryllium. Okay? Yes, sir. Very good. Now I really appreciate. किसने बोला था बेटा ये आंसर? तेजस. Very good, Tejas. अच्छा. Now if you look at क्या बोलते नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वहां पे दोनों में p ऑर्बिटल है. स्टिल ऑक्सीजन का एंथैल्पी इज लेस. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एट कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन. व्हाट माइट बी द पॉसिबल रीजन ओवर हियर? Nitrogen is stable, but p orbital is half stable. filled, so it is stable. Very good, very good. Nitrogen में the p orbital is half filled, and in oxygen it is incompletely filled.
So a incompletely filled orbital is less stable as compared to a half and a completely filled orbital. है ना? Yes. Yes. Very good. Yes. So that is why the first ionization enthalpy of oxygen is less as compared to nitrogen, although it is placed after nitrogen in the periodic table. कळलं सगळ्यांना? Yes. Yes. Very good. Just give me a minute. So ये दो गिव रीजंस बन सकते हैं बेटा, ठीक है? बोरॉन एंड बेरिलियम. Now let us see the explanation जो हमने अभी डिस्कस किया. Like look in beryllium. In beryllium it is 1s2 2s2 completely filled 2s orbital. And when I talk about boron, one s2 2s2 2p1 unpaired outermost electron. So unpaired is less stable, paired is more stable. Similar is in the case of oxygen and nitrogen. ऐसे ही आंसर लिखना बेटा अपना, मस्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ऐसा बॉक्सेस बनाने का, तो आंसर प्रेजेंटेबल भी लगता है. ये देखो, नाइट्रोजन में द p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. ये एटॉम, इस पे पढ़ोगे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स दे कॉन्फर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. इन ऑक्सीजन इट इज वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है ऐसा, तो ये इनकम्प्लीटली फिल हो गया, इसलिए यहाँ पे कम एनर्जी लग रही. दिस वे here there is increased electron repulsion. This way. Did everybody get the reason for this? Yes. Yes. Good. Now let us look at ionization enthalpy down the group. When we go down the group, charge is increasing but atomic size is increasing. ये देखो atomic size बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे हम नीचे जा रहे हैं. Yes. Atomic size बढ़ने से will have on ionization enthalpy बेटा बढ़ेगा कि कम होगा? Increases. Decreases. 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 Wow. बढ़ेगा, Okay, there are two options. People are coming with two minds, increases and decreases. Increases. Okay. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बेटा, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मतलब the last electron, the valence electron is going far away from the nucleus. वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है. अगर मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल में से निकालने में मुझे कम एनर्जी लगेगा ना, बिकॉज उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम है. Decreases. Yes. Decreases. That's why when we move down the group, the ionization enthalpy will decrease and it will not increase. Across the period it increases, down the group it decreases. मुझे कम एनर्जी लगेगा because साइज बड़ा है. साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा. ठीक है, इजीली निकल जाएगा मतलब लेस एनर्जी लग रही है अपने को. हो कि नहीं? Oh. Okay. Everybody understood this concept? Yes. Yes. Very good. Yes. So removing this electron,
it will require less energy, so ionization enthalpy down the group is going to decrease. Let us look at electron gain enthalpy. The measure of the ease with which an electron can be added to the atom. ठीक है. So it is the energy which is involved in converting an atom into a negative ion, anion. That is your electron gain enthalpy. Sir, will you repeat? Yeah? Repeat. Repeat. Okay. The process which involves of putting electrons or adding electrons to the atom and converting them into negative anions. This process can either be endothermic or it can be exothermic. You know what is exothermic? Yes, sir. Yes. अच्छा. एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है. रिलीज. ठीक है. इट कैन बी आइदर ऑफ द टू. द क्या बोलते हैं, एनर्जी कैन आइदर बी एब्जॉर्ब्ड और इट कैन बी रिलीज्ड. Now what happens is, when will it be exothermic and when will it be endothermic? This energy addition is going to be exothermic when the element is going to achieve a stable state by addition of electron. इलेक्ट्रॉन ऐड किया और मेरा एलिमेंट स्टेबल हो गया, तो वो टाइम पे उसको एनर्जी नहीं चाहिए. जितना वो एनर्जी रिलीज करेगा उतना वो स्टेबल होएगा. बेटा एक बात याद रखना, सिस्टम या फिर एटम, किसी भी एटम या सिस्टम के अंदर अगर ज्यादा एनर्जी रहेगा ना तो वो ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, राइट. और अगर उसका सब एनर्जी बाहर निकाल देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा. Did you get this? Yes. A small kid with maximum energy will run around the house like anything. He will go and irritate everyone in the house. But while doing so, he's losing energy. Once all his energy is lost, he will quietly sleep. He will become stable. He will not be any more reactive. Atom will only be reactive when there is an excess of energy in it. Anything which loses the energy becomes stable. Did you get this logic? Yes. 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 एनर्जी है मतलब एक्टिव है, एनर्जी नहीं है मतलब इनएक्टिव है. सिंपल एज दैट. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या कभी रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद मेरा वो एटम हैज अचीव्ड स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इट विल रिलीज द एनर्जी. फॉर एग्जांपल हैलोजेंस. ठीक है. क्या होता है हैलोजेंस में, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उनका कॉन्फ़िगरेशन बिकम सेम एज अ नोबल गैस. इलेक्ट्रॉन ऐड किया फ्लोरीन में तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा हो जा रहा, राइट बेटा. इट बिकम्स स्टेबलर. आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एटम. बेटा फ्लोरीन इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू नियॉन बिकॉज़ ऑब्वियसली फ्लोरीन के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो फिक्स्ड है, राइट. और नियॉन के अंदर 10 है, फ्लोरीन के अंदर प्रोटॉन्स 9 ही रहेंगे. तो फ्लोरीन नियॉन नहीं बन जाएगा, बट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा. अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा हो गया मतलब वो स्टेबल हो गया. उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है बेटा. एक इलेक्ट्रॉन गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे. तो अभी अपने को पता है कि लास्ट शेल में इफ देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, if the octet gets completed, the atom becomes stable, right? Yes. Yeah. So Yes. that way. See, on the other, electron gain enthalpies of my halogens and look at the electron gain enthalpies of the noble gases. Electron gain enthalpy of noble gases is higher, beta. Yes. Yes. उसके अंदर
पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, ठीक है। और हम जबरदस्ती अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, आणि खूप गरमी असते तिथे तू अजून डांबर काढावं लागते काय करतो बिट्टू तुझं सिझलर होईल वीडियो चालू हो गया. म्यूट पे जाना बेटा. वेदांत, आई एम सॉरी टू से बट तुम्हारा कैमरा चालू है और मुझे दिख रहा है कि तुम लेट के पढ़ रहे हो, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके, आई डोंट माइंड दैट, बट कैमरा बंद रखो, ठीक है. ओके, सो वेयर वाज आई फॉरगॉट. हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस. नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है. यहाँ पे देखो, लेट्स सी एन एग्जांपल. अभी देखो, नाउ नोबल गैसेस का क्या सीन है ना बेटा, वो स्टेबल है, उसको नहीं चाहिए कुछ भी इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, वो एकदम स्टेबल है. वो बोल रहा है कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं है, मेरे पास कोई एनर्जी लेवल खाली नहीं है कि मैं उसको इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेके रखूं. तो इस हीलियम को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन जो भी हैं, ये एटम्स को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ना एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, कि ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सके, उसको अपने पास पकड़ के रख सके, ऐसा. तो इसीलिए दिस प्रोसेस बिकम्स एंडोथर्मिक फॉर क्या बोलते हैं, ऑल दी स्टेबल एटम्स, एंड दैट इज व्हाई दे विल गेन मोर एनर्जी लाइक दिस. सी, अभी हीलियम का नेगेटिव आयन बनाना बोले तो, now when I talk about the variation of electron gain enthalpy in the periodic table, in the periodic table this variation of electron gain enthalpy is not very even. जैसे हमने ionization enthalpy का देखा था, ionization enthalpy का it was increasing across the period and decreasing down the group. एक standard statement था with some exceptions. So these standard statements with some exceptions are easy to understand. But when I talk about my electron gain enthalpy, it is not having a very standard variation like you can see over here. देख रहे हो ग्राफ कितना deviating है. So it depends on the atom and the outer shell configuration of the atom कि भाई ये lose कर रहा कि gain कर रहा कि क्या हो रहा, ठीक है. So what happens is na, electron gain enthalpy is becoming more negative with successive elements across the period. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उतना अच्छा. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है. वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा. तो इसीलिए वो एनर्जी नेगेटिव 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 होता जा रहा है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. Yes. See, effective nuclear charge is increasing when we are moving. Effective nuclear charge is increasing. Nuclear charge मतलब nuclear charge बढ़ रहा, number of protons बढ़ रहे, और atom का size कम हो रहा है बेटा. Increase. क्या? Atom का size कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव से इजीली अट्रैक्ट हो सकता है और इजीली ऐड कर सकते हैं. Are you understanding this logic, beta? When we move across the period, the nuclear charge. Yeah, I'm repeating, beta. When in this periodic table, when we are moving from left to right, what happens is atomic size is decreasing. Atomic size decreasing in the same period. Number of shells is same, but atomic size is decreasing. So when I add the electron becomes more closer to the nucleus. This yellow part, which you can see. Now, if the electron is more closer to the nucleus, it can be easily added to the atom because nuclear charge is positive. Positive charge will
try to attract the negative electron faster. That's why it will become more easier to add electron in a smaller atom as compared to a larger atom. अयो Yes. Yes. समझो बेटा? Repeat. Repeat, sir. Repeat करूँ? Okay, okay. बेटा, let us talk about this periodic table. एक मिनट थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ इसको. हाँ, यहाँ पे देखो बेटा, आप कंपेयर करो सोडियम और क्लोरीन को. थर्ड पीरियड में सोडियम और क्लोरीन को. सोडियम का साइज इज बिगर एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, राइट? Yes. Yes. Yeah, Yes. because across the period atomic size decreases. Across the period atomic size decreases. अच्छा, अभी मुझे बताओ कि अब इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी थर्ड शेल में ऐड हो रहा है और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी थर्ड शेल में ऐड हो रहा है. बट क्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है, जिसकी वजह से थर्ड शेल न्यूक्लियस के पास में है और सोडियम का थर्ड शेल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है. तो जो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया है वो न्यूक्लियस के पास किस एटम में ज्यादा करीब रहेगा? Chlorine. क्लोरीन में. न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. दिस पॉजिटिव चार्ज इज ट्राइंग टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट. जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना ज्यादा उसको कंट्रोल रखेगा वो और स्टेबल रखेगा. Yes. Yes. Right. Yes. So that is why it is easier to add electrons in smaller atoms, because smaller atoms, the orbits are closer to the nucleus, and more the closer to the nucleus, easily the nucleus will attract the negative electron. Okay. Yes. Yes, sir. वही बोल रहे थे हम लोग. Yes. सबको समझा ये वाला पार्ट बेटा? Oh, sir. Yes. Yes, sir. Now it will decrease down the group. Why is it decreasing down the group beta? क्योंकि न्यूक्लियर को और सी स्टेज. Increases. Very good, very good. Just hold on. It's because the size is increasing, that is why. तो अब भी जस्ट हमने लॉजिक में देखा था. But there are going to be exceptions. Now, electron gain enthalpy of oxygen is less negative as compared to the electron gain enthalpy of sulfur. Electron gain enthalpy of fluorine is less negative as that compared to chlorine. ये देखो ऐसा है, ये एक्सेप्शन रहेगा. अभी रीजन ओवर हियर इज, look at the sizes of oxygen and look at the क्या बोलते हैं size and look at the electronic configuration of oxygen and fluorine. Now what is happening over here is उनका साइज एक छोटा है, that is okay, साइज छोटा है. उसकी वजह से ना जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के थोड़े ज्यादा पास में रहते हैं. पास में रहने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा. इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण दिस एक्सोथर्मिक हो जाता है. एक्सोथर्मिक हो जाता है मतलब इसकी वैल्यू बड़ी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा है सिस्टम के अंदर. तो इलेक्ट्रॉन जब मैं ऐड करूंगा तो वो एनर्जी लूज करके तब इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है अपने अंदर. सो इट विल रिलीज दैट एनर्जी एंड देन ऐड इट. Now let us talk about sulfur and chlorine.
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहा है? थर्ड ऑर्बिट में। यहाँ पे लार्जर स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। therefore there is less electron electron repulsion because यहाँ स्पेस ज्यादा है, साइज थोड़ा बड़ा है, larger orbital space, less electron electron repulsion because electrons are nicely organized in the orbitals because of the big space which is available. So that is why the difference in the electronegativities. Just some extra information for you. Okay. एटॉमिक रेडियस हमने देख लिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमने देख लिया। लेट अस मूव ऑन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई गेस मैंने ये पार्ट्स में बताया था, तो आप लोग को छोटे छोटे पार्ट्स में बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल। एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Ability of an atom to attract share pair of electron. Excellent beta, excellent, very good. The ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, उसको हम लोग बोलेंगे electronegativity, or in simple language to understand, the power of attracting electrons towards itself. Now see, what you need to understand is इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। इनमें कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नॉट सेम एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन टू द एटम। जब मैं इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड कर रहा है, जब भी उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, उस वक्त वो एनर्जी रिलीज कर रहा है या एब्सॉर्ब कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। And electronegativity is the energy, it is the ability, it is the quality of an atom to attract electron towards itself. That is electronegativity. Electronegativity and electron gain enthalpy, two different things altogether. It is ability compound to attract the shared pair of electrons towards itself. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। डेल्टा मींस स्मॉल, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस एटम से वो क्या बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हल्का सा दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यू रिमेंबर बेटा, मैंने ये पहले भी बताया था आप लोग को। Yes. Yes. गुड। ये स्कूल में किया है, 10th में किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस, नो, मे बी। सर था पर पूरा मीनिंग अलग था। पूरा वो आपने देखा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, आपने ये किया रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोले तो एलिमेंट विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन। हाँ राइट। ज्यादा मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है, बट या द कॉन्सेप्ट डेफिनेटली इज कमिंग फ्रॉम देयर। अभी देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है, तो वो एक अलग चीज है। Ionization enthalpy, electron gain enthalpy, these are the amount of energies which are required to add or remove electrons. But electron gain enthalpy is the property of the atom to attract the pair of electron towards itself. ठीक है बच्चे? तो ionization enthalpy is the energy, electron gain enthalpy is also an energy, but electronegativity is the property of the atom. ये difference करते हैं ना सगळ्यांना? नहीं करते? Hello, mic test 1 2 3. Yes. Am I connected? Yes. Okay. Yeah. ये भाई पॉलिन जो भाई साहब हैं, इनका फोटो दिखाया है यहाँ पे।
ये भाई साहब ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था. He was the first person to introduce this concept of electronegativity. To understand covalent bonds and the presence of charges on them. He had seen कि बहुत सारे covalent bonded compounds हैं जिनके ऊपर कंपाउंड के अंदर ही एटम्स के ऊपर पार्शियल चार्जेस आ रहा है. ये पार्शियल चार्जेस क्यों आ रहा है वो पॉलिंग भाई पढ़ा और उन्होंने बताया कि भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है. तो सब लोग पूछे, अरे चिचा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आप ये क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वो ताकत है जिससे वो जो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है उसको अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर ले, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक छोटा अमाउंट का नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव छोटा अमाउंट आ जाता है. उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट बेटा? Yes. 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 बच्चे लोग देखो तो सर 74 people in front of me. I hope everybody is understanding it. They are not understanding, you have to ask questions. That is the right beta. आता ते जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम असते ते इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे आकर्षित करते. इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह म्हणजे काय? आपण पिरियोडिक टेबल मध्ये लेफ्ट टू राईट जेव्हा मूव्ह करतो इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस. म्हणजे नॉन मेटल ऍटम्स जे आहेत आपले क्लोरीन झाले, ऑक्सिजन झाले, नायट्रोजन झाले, these atoms they attract electron whereas metals are electropositive. Okay, for example, if I give you a covalent bond between say what do I say HCl. चल HCl ठीक है. HCl में hydrogen is electropositive and chlorine is electronegative. तो HCl के अंदर जब बॉन्ड बनेगा क्लोरीन जो होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. वेरी गुड. अच्छा, दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ये आप जब बीएससी करोगे तभी ज्यादा स्केल्स in which electronegativity is measured. Electronegativity is a property, it is a value, it is not energy. Okay, so electronegativity can be measured in terms of Pauling scale, in terms of Mulliken-Jaffe scale, or in terms of Alfred-Rochow scale. Okay, this is just some extra information for your general knowledge. तो पॉलिंग स्केल को मोस्ट वाइडली यूज करते हैं बिकॉज पॉलिंग भाई ने ही पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म यूज किया था. ठीक है. सो पॉलिंग स्केल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सी मानी जाती है? फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4. सो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाई बिटवीन, किसी का 2 होगा, किसी का 1.2 होगा, किसी का 1.3, किसी का 3.1, 3.3 ऐसा हो सकता है. बट हाईएस्ट इज फ्लोरीन. कितना? 4. आ जाओ. This is the electronegativity value of some of the elements in front of you. देखो, it lies between 0 to 4. लिथियम का 1 है, फ्लोरीन का 4 है, सोडियम का 0.9 है, क्लोरीन का 3 है, ऑक्सीजन का 3.5 है. तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित ज्यादा स्ट्रांगली करेंगे. तो अगर आप इस देखें, अगर आप पीरियड 2 और पीरियड 3 को कंपेयर करें तो सारे मेटल्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मच लेस एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स. ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को भी कंसीडर करेंगे ना बेटा हम, है ना? या वेरी गुड, वेरी गुड. तो I hope you all are taking screenshots or photos or whatever is convenient for some extra information, whichever you can see on the screen, or you wait for the lecture to be uploaded on YouTube and then you do it. Any which way is up to you. You can do whatever you want. It's just that you need to remember all this. Okay. I forgot that I have to put the laptop on charger. So before this thing dies, I better put it on charging. Just give me a second.
So I hope you have in the meantime note of this. ये देखो A है और एटम B है. एटम A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1.5 और एटम B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3. तो मेरे को बताओ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव होगा बेटा, A की तरफ कि B की तरफ? Very good. B. Higher electronegative atom is going to attract the shared pair of electron towards itself. ऐसा. तो इसीलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा B के ऊपर और A के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा. ऐसा. आता वॉटर मध्ये काय H2O हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is very low. Oxygen is 3.5. ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, oxygen 3.5. So what is going to happen when two electrons are shared between oxygen and hydrogen? Both the shared pair of electrons will slightly shift towards oxygen atom only. जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर 2 पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर एक एक पॉजिटिव पार्शियल. ठीक है. So this sharing of electrons is uneven. Electron becomes more electron rich and develops a partial negative charge and hydrogen develops a partial positive charge. This way. This arrow ये आपको arrow दिख रहा है बेटा, ये crossed arrow जो दिख रहा है? Yes. Yes. ये लाइन मार के जो arrow बनाया हुआ है, ठीक है? That is the dipole moment. That symbolizes where the dipole moment is going to be. अपने को है 11th स्टैंडर्ड में, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में what is dipole moment, how does it affect and all. ठीक है. तो अभी के लिए just think about it कि dipole moment जैसा कुछ तो होता है. Electronegativity, it increases across the. Why does it happen? Because obviously nuclear charge is increasing. Nuclear charge is increasing, size is becoming smaller, so it is easy to attract the electron, it is easy to add the electron. अगर आप देखोगे ना बेटा, ये चारों जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना? Yes. तो एटॉमिक साइज से हमने शुरू किया था, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज से हमने शुरू किया था. ये सब चीज को ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, साइज, चार्ज, ऐसा. Larger the size, lesser the tendency to attract electrons. So down the group क्या होगी बेटा, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही? डिक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ रहा तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग अट्रैक्ट नहीं करेंगे. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. ऐसा कम. ये देखो ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो डिक्रीज हो डाउन द ग्रुप. नोबल गैस एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होता है. कोई बता सकता है क्यों इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0? Yeah, absolutely. They are stable. They have completed their octets. They do not want any more electrons. वो किसी को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा ही नहीं, तो इसीलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? 0. ये देखो all paired electrons, मस्त एकदम, कुछ नहीं चाहिए इसको दुनियादारी से. Now non-metal atoms, उनके लास्ट शेल में क्या बोलते हैं, 1-2 इलेक्ट्रॉन की ही कमी है. बस 1-2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करते हैं, आने देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है.
कळलं का रे सगळे? Yes, sir. Also, yes. Electronegativity increases, non-metallic character increases across the period. Down the group, metallic character increases. ये देखो, what is happening is ना, outermost electronic configuration जो है, it increases after a definite interval of time, and this gives periodicity to the properties in the periodic table. मतलब लिथियम का आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1. सपोज ये 2 को मैं n ले लूं, ns1. तो अब मैं व्हेन आई मूव अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, बेरिलियम आएगा, बोरोन आएगा, कार्बन आएगा एंड सो ऑन, और फिर जब मैं वापस सोडियम पे आता हूं तो सोडियम का भी लास्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन इज ns1. देन अगेन आई मूव अक्रॉस द पीरियड एंड देन आई कम टू पोटेशियम. पोटेशियम का भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns1. तो ये सबका ना आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है. इसीलिए ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक नेचर में होती हैं. आफ्टर अ डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम दे कीप रिपीटिंग. ये देखो, कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से क्या बोलते हैं, जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाता है. ठीक है, सबका ये देखो पीरियड 1 की अगर मैं बात करूं तो सबका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. IUPAC डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट की? A measure of the degree of oxidation of an atom in a substance. We have studied oxidation in detail. ठीक है, electron which are removed from the atom which cause the positive oxidation state, that is oxidation state. ठीक है, एक एटम निकाला तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया. अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन एडेड टू द एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन is your negative oxidation state. So oxidation of monoatomic ion is equal to the net charge present on it. बेटा ये मैंने कुछ भी नया नहीं बोला है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको इसके ऊपर पढ़ाया था. Yes. है ना, बोर्ड पे Yes. पढ़ाया था मैंने तो ये. हाँ. Yes. अच्छा, so oxidation state can be positive or negative. So what is the oxidation state of all the elements? State is 0. Uncombined state में it is always 0. But when it is in the combined state, तब उसका कुछ ना कुछ value रहेगा. ऐसा. So now ये देखो, अभी how do we calculate for oxidation state of elements? Looking at the electronic configuration. By looking so oxidation state of potassium, number of electrons in the valence shell is 1. Oxidation state of sulfur, state of sulfur, 8 minus number of electrons in the valence shell, 8 minus 6, which is equal to 2. समझा तुम लोग को ये? सर 8 कैसा? 8 मतलब Octet. स्टेबल, ऑक्टेट मतलब स्टेबल. उसके अंदर से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर मैं माइनस कर दूं तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो 2 उसके अंदर ऐड कर दूंगा तो 8 हो जाएगा, राइट? तो उसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? 8. उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2. पोटेशियम में कैसा है? एक ही एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, वो एक वो लूज कर दे तो स्टेबल हो जाएगा. Yes. Yes. Simple. ऐसा.
valency and oxidation state both is 1. ये देखो ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17, अगर मैं इनकी बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट और इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो अकॉर्डिंगली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट इज इट्स ना 1 ग्रुप 2 13 14 15 16 17, इन सब के अंदर इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड और सब्ट्रैक्ट है, 1 2 13 और 14. बट अगर मैं बात करूं 15 16 और 17 की, तो 15 16 17 में देखो भाई वैलेंसी ऑफ क्या बोलते ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज 1, ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज 2, 13 इज 3, 14 इज 4. बट 15 16 17 का 5 6 और 7 नहीं होता बेटा, इट इज 3 2 एंड 1. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट डिड आई जस्ट डू. 5 है तो उसके अंदर 3 और इलेक्ट्रॉन लगेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके अंदर 2 और लगेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. 7 है तो 1 और इलेक्ट्रॉन लगेगा कंप्लीट करने के लिए, तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 3 2 एंड 1. We did that बेटा. 8 minus 5, 8 minus 6, 8 minus 7. ऐसा number can be given by the number of electrons in the outermost shell and or by 8 minus the number of valence shell electrons. इतना इन डेप्थ करने का जरूरत नहीं है, ये आपने पढ़ा है. अभी ये हो गया अपना S and P block का. But when I talk about transition and inner transition, when I talk about D and F block elements, these group का elements they exhibit variable oxidation state. Variable oxidation state मैंने आपसे discuss भी किया था. Variable oxidation state is because it has many unpaired electrons. Variable oxidation state is because it has many unpaired electrons. याद है बेटा? Yes. D subshell और F subshell बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड शेल्स होते हैं, जिसकी वजह से इट कैन लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स और गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इट शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. अयो Yes. Yes. मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा. ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे. अभी यहां देखो 2H2 plus O2 will give me 2H2O. Magnesium is from group 2 showing oxidation state of +2. मैं डायरेक्टली बोला +2. अब लोग को पता ना मैंने क्यों बोला +2. It is group 2 element, it is alkaline earth element. All group 2 elements have oxidation state of +2. Now let us talk about oxygen. Group 16. It has oxidation state of -2. Oxygen has an oxidation state of -2, except in peroxide. In peroxide, it is -1. 1. और कोई एक्सेप्शन है ऑक्सीजन के साथ? सुपर ऑक्साइड. Super Very peroxide. good. Very good. Peroxide. Very good. Peroxide. उसमें क्या होता है बेटा? +1. Minus one. Half. हाँ, very good. -1/2 होता है उसके अंदर. चलो good. You remember that. I'm very happy. फ्लोरीन के साथ. फ्लोरीन के साथ क्या होता है बेटा? प्लस +1. +1 होता है. +1. वेरी गुड. क्यों बेटा? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज फ्लोरीन is most electronegative as compared to oxygen. Very good. Oxygen. Very good. Otherwise, oxygen will have oxidation state of -2 with all the atoms. अब देखो, magnesium and oxygen are forming compounds. Magnesium oxide, अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखूं, वो न्यूट्रल है मॉलिक्यूल MgO. व्हाई? बिकॉज मैग्नीशियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ऑक्सीजन का -2 है. -2. प्लस एंड माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया ये लोग ने.
the Yes. addition of the oxidation Yes. state of all the elements in a neutral molecule is 0. Zero. बताया था ना बेटा मैंने आपको ये? Yes. 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 This is a ionic compound. मैग्नीशियम जब भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे +2 एटम बनती, यहाँ पे -2 आयन बनती. ठीक है. So when I add their oxidation state +2 -2, the sum is going to be 0. Zero. Now when I talk about covalent bonding in carbon dioxide, ये देखो अभी covalent will be decide the क्या बोलते हैं oxidation state. It depends on the electronegativity of the atom. यहाँ पे कौन सा electronegative atom ज्यादा है? ऑक्सीजन, obviously, right? So कार्बन का क्या बोलते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन का नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ पे ऑक्सीजन -2 एंड कार्बन +4. Yes. ये हो कि नहीं? Yes. ठीक है. आयनिक कंपाउंड में इट इज इजी. जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव. बट कोवैलेंट कंपाउंड में डिफिकल्ट हो जाता है. तो कोवैलेंट कंपाउंड में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देने का, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देने का. पढ़ना करे. Yes. 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 होस हाय more electronegative is oxidation state minus, and less electronegative is given positive oxidation state like this, -2 +4. ये देखो oxygen is higher electronegative as compared to chlorine. So oxidation state of oxygen in ClO2 is going to be -2. And chlorine में the oxidation state is going to be +1 each, +1 +1. Why? Because oxygen is more electronegative as compared to chlorine. समझा ना बेटा? Yes. ये भी देखा था हमने ऑक्सीडेशन इसमें, ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में. अभी ये भी देख लो, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OH. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? Oxygen +2. या तो फ्लोरीन को नेगेटिव मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन को पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज ये कोवैलेंट कंपाउंड है एंड इट विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. 2 फ्लोरीन एटम्स विल हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट and आपली oxidation state of oxygen is going to be +2. Only compound where the oxidation state of oxygen is positive, otherwise कहीं नहीं. ठीक है बेटा, ये हमेशा याद रखियो. Because oxygen का oxidation state is 3.5 और fluorine का it is 4. तो the most electronegative element is fluorine. Which is the second most electronegative element? ऑक्सीजन. Very good. Very good. And some elements will always have same oxidation state in all the compounds with some exceptions. आपके सामने है. Group 1 elements will always have +1. Group 2 elements will always have +2. Hydrogen always +1 with metal, but with metal it is -1. Oxygen generally -2, but peroxides and superoxides and with fluorine it is plus. अपना क्या बोलते हैलोजेंस में से भी ऑलवेज -1. तो ये है कुछ एक्सेप्शंस विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दे विल बिकम पॉजिटिव, वो दिखाया है. ठीक है. दिस इज जस्ट अ रिवीजन, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है बेटा. याद आ रहा है तुमको चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस वाला? Yes. Now see, if you look in the
periodic table, oxidation number na it first increases and then it starts to decrease. ये simple logic. Valency का भी ऐसा ही है ना. In the periodic table, when you move from left to right, it will first increase till 4 and then it starts decreasing. Why? Because electron add हो रहा है last shell में. Yes. 4 तक वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. 4 के बाद इलेक्ट्रॉन गेन करना Gain शुरू करेगा. करेगा, इसीलिए वो रिड्यूस होने लगता है ना बेटा? सिंपल लॉजिक है कि हाँ. नहीं? Yes. ये जो ग्राफ वगैरह दिख रहे हैं इनसे डरो मत, ठीक है? इग्नोर देम. आ जाओ. Look at the electronic configuration. So oxidation state is individual property of each group. ये देखो. Formulas of hydrides and formulas of oxides of certain group of elements, a certain period of elements. तो इनका oxidation state हम लोग निकाल सकते हैं by finding the formula for hydrides and finding the formula for oxides. किस तरह से वो साथ bond करेगा. So they are showing similar chemical properties. But जो second period के element है ना, periodic trend इतना similar नहीं होता है because उसके अंदर बहुत अफला तफरी है. सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उधर है, देन कार्बन उधर है, देन ऑक्सीजन उधर है. तो इनका केमिकल रिएक्टिविटीज एट अ डिफरेंट लेवल एंड व्हेन एज कंपेयर्ड टू द अदर एलिमेंट्स. ऐसा. तो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग नेचर है. ठीक है. सो लिथियम यहाँ it behaves different as compared to other elements in the group. इसके जो सोडियम और फ्रांसीशियम जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं ना इन ग्रुप 1, they all form ionic compounds, but लिथियम अकेला ऐसा है जो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है. ये इसलिए ऐसा करता है बिकॉज उसका साइज छोटा है, बिकॉज उसकी केमिकल रिएक्टिविटी इज डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू द अदर ग्रुप एलिमेंट्स. तो ये जो एक्सेप्शंस है ना बेटा, ये आप जब अलग अलग ग्रुप्स पढ़ेंगे सेपरेटली इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तब आपके सामने ये सब आएगा. ठीक है. तो ऑल दीज एक्सेप्शंस वी विल स्टडी व्हेन वी विल स्टडी द डिफरेंट चैप्टर व्हिच आर कमिंग क्वेश्चन. सर स्क्रीन गायब हो गया. शेयर किया बेटा. So this was all about your periodic table. इतना आपने पढ़ा periodic table के बारे में तो काफी है. इसमें ऑलमोस्ट हमने सब कुछ 10th का रिवीजन किया स्टार्टिंग में. उसके बाद we saw the IUPAC nomenclature of elements having atomic weight atomic number more than 100. Then we saw कि भाई अगर मैंने एटम का एटॉमिक नंबर दिया तो मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके मुझे कैसे पता चलेगा वो कौन से ग्रुप से है, कौन से पीरियड से है और कौन से क्या बोलते ब्लॉक से है. एंड देन वी सॉ द ट्रेंड्स इन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज. We also saw how do they change, what are the exceptions. We saw the sizes, atomic sizes, ionic sizes and the exceptions. Okay beta, I hope everybody has understood this, huh? Yes sir. Yes, sir. Very Yes, good sir. बेटा. देखते देखते हमने 3 चैप्टर एक दूसरे के साथ कंप्लीट कर लिए और जबकि हम लोग आज तक एक दूसरे से मिले भी नहीं है. हम लोग, आप लोग कितना विश्वास करते हो मेरे पे. वेरी गुड. ठीक है. ओके. माधुरी मैडम. हाँ सर बोलिए. हाँ मैडम. प्रतिभा रिकॉर्डिंग ऑफ कर. ये भी आप रिकॉर्डिंग पे बोल रही हो.